So today we will continue with nucleophilic substitution. First write key facts about nucleophilic substitution. Key facts about nucleophilic substitution. Write the first point. CF bond मतलब कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड. CF bond being highly stable, CF bond being highly stable, comma, alkyl fluorides do not undergo nucleophilic substitution reaction. Alkyl fluorides do not undergo nucleophilic substitution reactions. Alkyl fluorides do not undergo nucleophilic substitution reactions. Written. Next point you write. The carbocation formed in SN1 mechanism. The carbocation formed in SN1 mechanism. The carbocation formed in SN1 mechanism can undergo rearrangement. To give a more stable carbocation. To give a more stable carbocation. Close the door. To give a more stable carbocation. Third point you write. In SN2 mechanism, comma, an alkyl group at in SN2 mechanism, comma, an alkyl group at alpha carbon, an alkyl group at alpha carbon being bigger in size, an alkyl group at alpha carbon being bigger in size than the hydrogen atom, causes steric hindrance. Being bigger in size than the hydrogen atom causes steric hindrance and makes the reaction difficult to occur. Next point. Write primary allylic and primary benzylic halides. Primary allylic halides and primary benzylic halides are more reactive in nucleophilic substitution reactions. As compared to primary alkyl halides. ब्रैकेट में लिखो रीजन. ड्यू टू ग्रेटर resonance stabilization of allylic and benzylic. Due to better resonance stabilization of allylic and benzylic carbocation intermediates. Next point, last point. Right, SN1 reactions are favored by polar protic solvents. Such as water, alcohol, or aqueous organic solvents.
ठीक है, रिटन फुल स्टॉप। SN2 reactions are favored by SN2 reactions are favored by non-polar solvents, are favored by non-polar solvents, ठीक है। I'll explain all the points. So read the first point, what you have written, read it. CF bond being highly stable, alkylic fluorides do not undergo nucleophilic substitution reaction. CF bond being highly stable because this is highly electronegative, this is highly electropositive. इन दोनों के वजह से इसमें electrostatic bond, this is although a covalent bond, but it has high ionic character. It shows high ionic character, जिसके वजह से ये bond टूटता ही नहीं है, टूटेगा नहीं तो कोई और आके सब्स्टिट्यूट कैसे होगा? That's why nucleophilic substitution is not possible. ठीक है, and this is the best nucleophile it can have. फ्लोराइड से बड़ा बेटर न्यूक्लियोफाइल और कौन है? तो ऑलरेडी एक बेस्ट न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करने वाला भी कौन है? कोई नहीं. That's why it does not show. Second point. The carbocation formed in SN1 mechanism can undergo rearrangement to give a more stable carbocation. SN1 में कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट अंडरगो करता है. फॉर एग्जांपल सपोज मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसा है, ठीक है, कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक है, या तो तुम ऐसे सोच लो, सपोज इट इज बॉन्डेड विथ X, ऐसा है सिचुएशन, ठीक, यहाँ पे भी कुछ लगा हुआ है, कार्बन ही ग्रुप अटैच्ड है. मैं ऐसे एक दिखाता हूँ, एक बेसिक केस दिखाता हूँ, CH3 CH3 CH2X. सपोज ये बॉन्ड क्लीव होता है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लीवेज हो, और ये SN1 है, तो पहले क्लीव होगा फिर जाके दूसरा. तो जब बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो व्हाट विल हैपन, CH2 प्लस यहाँ यहीं पे आएगा, यहाँ पे भी CH3 एंड इधर भी CH3, ठीक है. अभी देखो कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, देन न्यूक्लियोफाइल विल अप्रोच. रीअरेंजमेंट मैंने बोला था 3 चीजों को देखना है, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट. तो पॉजिटिव इसको देने से हाइड्रोजन उधर जाना पड़ता है, इधर तीनों जगह में कहीं भी हाइड्रोजन है नहीं है. अगर हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन वहां जाके प्लस यहाँ जाता, ठीक, क्योंकि अभी ये जो कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्या है 1 डिग्री, ठीक है. हाइड्राइड शिफ्ट तो नहीं हो, मिथाइल शिफ्ट तो हो सकता है. मिथाइल शिफ्ट का मतलब होता है प्लस साइन इधर आएगा, एक मिथाइल उधर चला जाएगा. तो C यहाँ पे CH2 है, इधर आ गया मिथाइल, और यहाँ पे आ गया प्लस, तो नीचे भी CH3, इधर भी CH3. अभी यहाँ पे कार्बोकेटाइन 1 डिग्री था, एक ही तरफ से उसको खाना मिल रहा था, अभी प्लस जब इधर आ गया उसको कितने तरफ से मिला, तो ये क्या बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन. तो ये ज्यादा स्टेबल है. ये बनने के बाद फिर नाउ न्यूक्लियोफाइल विल अप्रोच दिस, नाउ न्यूक्लियोफाइल विल अप्रोच, समझ गए, फॉर सब्स्टिट्यूशन. क्या कोई डाउट? क्लियर? अगर शिफ्टिंग के बाद भी डिग्री में कोई सुधार नहीं होता तो जो था वही रहता, शिफ्टिंग कराने का कोई मतलब नहीं. इफ यू सी आफ्टर शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट होने के बाद if the degree of carbocation is increasing then do it or else not at all required, ठीक है. और रीअरेंजमेंट करने के बाद ही न्यूक्लियोफाइल विल अप्रोच, तो ये बताया गया था उस पॉइंट में. नेक्स्ट पॉइंट तीसरा, थर्ड. In SN2 mechanism, an alkyl group at alpha carbon being bigger in size than the hydrogen atom causes steric hindrance and makes the reaction difficult to occur. ठीक है, अल्फा पोजीशन में, ठीक, SN2 कौन ज्यादा फेवर करता है, फेवर्ड बाय 1 डिग्री, किससे ज्यादा, फेवर्ड बाय 1 डिग्री कार्बन, ठीक. तो सपोज यहाँ पे CX है, 1 डिग्री रहने से चलेगा, बट अगर यहीं पे 2 डिग्री हो जा रहा है, इधर H रहने दो, इधर ऐसे CH3 CH2 यहाँ तक तो ठीक था 1 डिग्री. 2 डिग्री जैसे ही बन जाता है, यहाँ सोचो एक केस में इधर हाइड्रोजन होता है, ठीक, और एक केस में, और मैं ऐसे लिख देता हूँ CXH, यहाँ पे CH3 CH2 तो इसके वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होगा कि नहीं. और रीजन क्यों है स्टेरिक हिंड्रेंस का, क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों होना है. मैंने बताया था ना मैकेनिज्म लास्ट लेक्चर में, क्या बताया था,
एक तरफ से अप्रोच, दूसरी तरफ से लिविंग, ठीक है। और दोनों जब एक साथ होना है स्पेस चाहिए, ठीक है कि नहीं। अगर इधर से एंट्री उधर से एग्जिट करना ही है एक ही टाइम पे, इंटरमीडिएट में न्यूक्लियोफिल इज लिविंग एंड द अटैकिंग रिएजेंट हैज टू अटैक, ठीक, दोनों सेम टाइम हो रहा है। अगर दोनों सेम टाइम होना है तो स्पेस फ्री रहना चाहिए। बट इफ अल्काइल ग्रुप इज कमिंग हियर, तो फिर उसके वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होगा ना, जगह तो वो खाएगा ना, खाली हाइड्रोजन कम जगह ले रहा था, अभी उसके जगह अल्काइल ग्रुप हो जाने से जगह खा रहा है, तो 2 डिग्री जल्दी दिखाएगा कि 1 डिग्री, 1 डिग्री, समझ गए, क्लियर। यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले क्लीवेज होगा फिर अटैक होगा, 2 स्टेप्स, बट यहाँ पे क्या होता था, सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप का मतलब दोनों साथ में होना है, साथ में होने के लिए स्पेस, फ्री स्पेस चाहिए आगे और पीछे। बट इफ एनी अल्काइल ग्रुप इज देयर, इट ऑफर्स स्टेरिक हिंड्रेंस एंड रिएक्शन डज नॉट फेवर, ठीक। तो ये 3 पॉइंट का बना, फिर चौथा 5वां पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी नेक्स्ट। Primary allylic and primary benzylic halides are more reactive in nucleophilic substitutions reaction as compared to primary allylic and primary benzylic, it has given, ये ज्यादा prone होते हैं, more reactive towards substitution, these all are more reactive towards substitution। क्यों, इसका रीजन होता है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग कैपेसिटी। सपोज मैं प्राइमरी एलाइलिक ले लेता हूँ, ठीक है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, एलाइलिक हो गया। सपोज यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट होता है, या तो मैं पहले तुम्हें दिखाता हूँ, CX H2 H H2 ऐसा है। तो पहले सोचो बॉन्ड क्लीव हुआ, तो बॉन्ड क्लीव होगा तो क्या हो जाएगा, H2C डबल बॉन्ड CH CH2 के ऊपर प्लस X माइनस, चला गया। तो अभी डबल सिंगल प्लस रेजोनेंस है, क्या है, तो अभी ये स्ट्रक्चर रह सकता है, या तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, या ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाने से CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, जहाँ से बॉन्ड चला गया है उसके ऊपर प्लस आ जाएगा। तो या तो ये स्ट्रक्चर वैलिड है या तो ये वैलिड है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है। और जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, resonating structures more means stability is also high, any doubt। suppose अभी कोई इस तरह का ग्रुप है बेंजाइलिक like this और CH2X क्लीव हो जाएगा, तो बेंजाइलिक ग्रुप में कैसा हो जाएगा, CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा प्लस X माइनस, बॉन्ड क्लीवेज। अभी क्या होगा, ये प्लस इधर है तो पहला रेजोनेंस स्टेप में ये होगा, सो इट विल फॉर्म व्हाट, ये बॉन्ड इधर अगर आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, है ना, और प्लस साइन इस कोने में आएगा, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस बॉन्ड विल गो हियर, इट विल अगेन फॉर्म अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी देखो जहाँ डबल बॉन्ड जा रहा है वहाँ दिक्कत नहीं है, ये बॉन्ड अगर इधर आ जाएगा तो इधर बॉन्ड, जहाँ से गया है इस कॉर्नर पे क्या आएगा प्लस। नेक्स्ट क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, अगेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इधर and you will get a plus sign here, double bond CH2, again what will happen, this will come here last, तो वापस जैसा था वैसा बन जाएगा, here and here, again single bond here और CH2 के ऊपर प्लस चला जाएगा। so it is having how many resonating structures, 1 2 3 4 5, तो यहाँ कंप्लीट में क्या लिख देंगे, 5 resonating structures। किसको स्टेबलाइज करने के लिए, टू स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, टू स्टेबलाइज कार्बोकेटायन। तो फिर ऑब्वियस बात है स्टेबिलिटी क्या रहेगा, हाई, देयरफॉर स्टेबिलिटी है यार। और अगर कोई नॉर्मल होता है, सपोज नॉर्मल CH3X, तो टूट के CH3 प्लस X माइनस, कुछ और हो पाता है क्या, सोचो CH3 ऐसे नहीं तो कर देता हूँ, CH2 इधर CH3 लंबा चेन भी, तो अब भी कुछ फायदा होता है, CH2 CH3 यही बचता है, तो स्टेबलाइज तो नहीं हो पा रहा ना, देयर इज नो रेजोनेंस, तो ऑब्वियसली दिस कार्बोकेटायन इज नॉट स्टेबल। यहाँ स्टेबिलिटी खाली रीअरेंजमेंट से हो सकता है या तो नहीं हो सकता, बट दीज टू हैव मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दैट्स व्हाई द टेंडेंसी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जब भी पूछेगा टेंडेंसी, तुम देखोगे भी टेंडेंसी टुवर्ड्स SN किसका रहेगा, बेंजाइलिक का सबसे ज्यादा, ग्रेटर देन एलाइलिक, ग्रेटर देन एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब समझते हो ना, नॉर्मल चेन, ओपन चेन, ठीक है ना, तो इसका ज्यादा ग्रेटर देन दिस में, देन दिस, क्लियर, नोट करो फोर्थ पॉइंट।
हाँ, व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट? SN1 reactions are favored by polar protic solvents. अच्छा, SN1 favored by polar protic and SN2 by Non-polar. non-polar solvents. देखो polar protic का मतलब क्या होता है? There should be some difference in polarity. तो इसमें कौन कौन आ सकते हैं? वाटर आ सकता है, अल्कोहल आ सकता है, ये सारे सॉल्वेंट्स। क्योंकि वाटर में देखो H2O होता है जरूर, बट ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अल्कोहल में मान लो CH3OH माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। पोलर प्रोटिक का मतलब होता है देयर शुड बी सम पोलरिटी डिफरेंस होना चाहिए, दे फेवर द रिएक्शन। और यहाँ पे नॉन पोलर का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर माने कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लो, बेसिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे क्या हो सकता है? एग्जांपल CCl4 है ना, CCl4 जैसे Cl नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। तुम देखो कार्बन और क्लोराइड है, ऑब्वियसली क्लोराइड अपने तरफ खींचेगा, ये भी क्लोराइड अपने तरफ खींचा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर है? इधर। ये क्लोराइड इधर खींचा, ये क्लोराइड भी इधर खींचा, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट किधर? इधर। तो नेट क्या हो गया? कैंसिल। तो म्यू इज इक्वल्स टू 0। तो म्यू क्या होता है ना? डाइपोल मोमेंट। तो नेट डाइपोल मोमेंट तो 0 है, तो इसको क्या कहेंगे? नॉन पोलर। क्या कहेंगे? जहां पे पोलैरिटी रहेगा दैट इज पोलर। जैसे तुम बोलोगे H2O, मैं दिखाता हूं HO प्लस माइनस खाली होने से पोलर है ऐसा मत सोचो, क्योंकि प्लस माइनस तो यहाँ पे भी था, तो ये भी तो पोलर होना चाहिए था ना। अब देखो H2O में क्या होता है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बॉन्ड पेयर को अपने तरफ खींच के रखेगा, ये भी। फिर ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? दो ठो लोन पेयर। तो लोन पेयर मतलब ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लीव्ड रहता है, तो इन दोनों का भी रिजल्टेंट ऊपर और इसका भी रिजल्टेंट कहाँ है? ऊपर। तो दोनों ऊपर की तरफ है, तो क्या लिखेंगे? म्यू नॉट इक्वल्स टू 0। दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट? पोलर। क्योंकि डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो रहा है ना, तो दैट्स व्हाई दिस इज पोलर। तो SN1 फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक एंड दिस इज नॉन पोलर। ठीक, डिफरेंस लिखो, दो टेबल बनाओ SN1 एंड SN2। मेक टू टेबल्स SN1 एंड SN2 रिएक्शंस के। राइट, फर्स्ट पॉइंट, SN1 follows first order kinetics. SN1 follows first order kinetics and SN2 जो है follows second order kinetics. SN1 follows first order kinetics, SN2 follows second order kinetics. Next point, SN1 में राइट followed by tertiary halides, शॉर्ट में लिखते चलो सेकंड पॉइंट। और ये वो वाला SN2 क्या होगा? followed by primary halides. SN1 followed by tertiary halides, SN2 followed by primary halides. ठीक है। थर्ड पॉइंट यू राइट SN1 में राइट favored by weak nucleophiles and SN2 favored by strong nucleophiles. SN1 में राइट favored by weak nucleophiles, SN2 favored by strong nucleophiles. Next, right, in SN1 low concentration of nucleophile is required. In SN1 low concentration of nucleophile required. अगर हाई कंसंट्रेशन यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? SN2 को फेवर करेगा। In SN2 में राइट हाई प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन of nucleophile favors SN2. Presence of high concentration of nucleophile favors SN2. Written. Next point. इसमें लिख दो SN1 followed by polar protic solvents. Followed by या favored लिख दो, नहीं तो favored by polar protic और दूसरा वाला favored by non-polar solvents. Favored by non-polar solvents. Next, SN1 में राइट elimination is the important side reaction here. Elimination is the important side reaction here. Elimination is the important side reaction here. And SN2 में elimination does not take place. Elimination does not take place along with it. क्योंकि इसमें देखते हो ना दोनों साथ होता है, तो elimination does not take place with it.
SN1 में राइट रीअरेंजमेंट में टेक प्लेस फॉर स्टेबिलिटी। SN1 में राइट रीअरेंजमेंट में टेक प्लेस फॉर स्टेबिलिटी, क्योंकि 3 डिग्री है तो रीअरेंजमेंट तो होगा ही। बट SN2 में नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। 1 डिग्री में क्या ही रीअरेंजमेंट। इन SN2 राइट नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। फिर SN1 में राइट 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री रिएक्टिविटी ऑर्डर, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन CH3X रिएक्टिविटी ऑर्डर है। 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन CH3X। और SN2 में राइट उल्टा, CH3X ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 डिग्री, CH3X ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज डन। नेक्स्ट हेडिंग यू गिव एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस which you have to complete. I will give you few questions. Examples of nucleophilic substitution reactions. ठीक है, तो पहला वाला में न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH, तो ROH प्लस NaX। दूसरे वाले में H2 है तो OH ही अटैच होगा। H2 में क्या होता है? HOH बॉन्ड होता है ना, तो OH will get attached with R, न्यूक्लियोफाइल वही है। H बचा, H will react with this HX। NaI RX ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है शायद, अगर याद होगा तो Ri प्लस NaX, ये कौन सा था? निकलस्टीन, पढ़ाया गया था ना। क्यों NaI ही खाली यूज होता है? क्यों? रीजन बताया था ना। एनीवन रिमेंबर्स? सोचो थोड़ा। ना ना ना, वो नहीं था। इनसॉल्युबल होता है रिएजेंट में, बाकी सारे सॉल्युबल होते हैं, इसलिए उसको यूज करते हैं। तो RX NH3, तो उसमें क्या होता है? NH2 विल गेट अटैच्ड, H रहेगा X के साथ, तो R NH2 प्लस HX 1 डिग्री एमीन है ये, है ना। इस केस में अभी देखो X जाएगा तो NH2 में से H जाएगा, बट बॉन्डिंग कैसा होगा? ध्यान से देखो, R किसके साथ बॉन्ड होगा? N के साथ, क्योंकि N के पास लोन पे है ना। ठीक है, N के साथ और कौन लगा हुआ है? R डैश, और एक H रहेगा, दूसरा H HX, तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री एमीन। समझ पाए? इस केस में H निकलेगा X H के साथ और N आके इधर जुड़ जाएगा, तो क्या होगा? N है ऑलरेडी, R डैश है, R डबल डैश है, उधर से कौन आ जाएगा? R will get attached, X and H will combine to form HX. So this is what? 3 degree amine. ठीक, ये बड़ा आसान है। RX KCN अल्कोहलिक, तो it is used to form alkyl cyanide, CN plus KX. This is what? Alkyl cyanide. But AgCN जब भी देते हैं, it forms isocyanide, क्योंकि Ag metal is not directly attached with, because it is a low metal, directly N के साथ अटैच नहीं होता है, so that's why R you form isocyanide NC and Ag with X, AgX, salt, silver salt precipitate आएगा, and this is what? Alkyl isocyanide. नोट करो, और 3-4 है, इसके बाद देता हूँ, चलो जल्दी लिखो। So in the first case what will be the product? R NO2 जैसा होना चाहिए, ठीक है ना, और AgX। KNO2 के केस में क्या होगा? R ONO प्लस KX, तो इसको क्या बोलते हैं? अल्काइल नाइट्राइट। ये क्या है? नाइट्राइट, और ये क्या है? नाइट्रेट। नेक्स्ट, इस केस में ऑक्सीजन से अटैच कौन हो जाएगा? R, तो R डैश COOR, Ag will go with X। तो ये क्या है एक्चुअली? ईस्टर। नाम जो भी होगा अल्काइल ग्रुप को देख के, बट ये ईस्टर है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये LiLH4 इज अ पावरफुल व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट, सबको पता है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन दोनों तरफ ऐड हो जाएगा, तो RH RH प्लस HX, H will go with X, तो RH प्लस HX, तो ये नॉर्मल क्या फॉर्म होगा? अल्केन, ठीक है ना।
नोट कर लो. नेक्स्ट ऑल ऑफ यू गिव हेडिंग एलिमिनेशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन खत्म हुआ, दैट वाज केस 1. तो सब्स्टिट्यूशन के अंडर जो भी हुआ सब खत्म हुआ. अभी एलिमिनेशन, दिस इज द केस 2, एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन में राइट पहला है डीहाइड्रोहेलोजनेशन. डीहाइड्रोहेलोजनेशन ब्रैकेट में लिखो फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स. डीहाइड्रोहेलोजनेशन, डीहाइड्रोहेलोजनेशन ब्रैकेट में राइट फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स. राइट alkyl halides on hitting with alkyl halides on hitting with alcoholic KOH, alkyl halides on hitting with alcoholic KOH undergo elimination of hydrogen halide to form alkene. Undergo elimination of hydrogen halide to form alkene. Okay, written, full stop. Next you write, next point write, since the reaction involves the removal of a hydrogen atom, since the reaction involves the removal of a hydrogen atom and a halogen atom, since the reaction involves the removal of a hydrogen atom and a halogen atom from the haloalkane, that's why these are called dehydrohalogenation reactions. That's why the reactions are called dehydrohalogenation reactions. Dehydrohalogenation reactions. Written, dehydrohalogenation reactions. Clear? Now I'll explain. So now let's understand elimination. एलिमिनेशन मतलब छोड़ के जाना सीधा, कोई और उनका जगह नहीं ले रहा, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, सीधा चला जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन. तो इसमें जो पहला पढ़े डीहाइड्रोहेलोजनेशन, एंड एज द नेम सजेस्ट्स वन हाइड्रोजन भी जाना चाहिए, हैलोजन भी जाना चाहिए. सपोज आई हैव ए नॉर्मल, कोई भी नॉर्मल चीज है, मैं एक नॉर्मल ले रहा हूँ, यहाँ पे हैलोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन, बाकी सारे हाइड्रोजन दे दो. ठीक है, और इसके साथ सपोज हम लोग ऐड कर दे रहे हैं KOH which is alcoholic. एक्वस नहीं देना है, एक्वस देने से सब्स्टिट्यूशन हो जाता है. जब मैं समझाता हूँ कैसे होगा, इसमें एक्वस देते तो क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा. व्हेन यू गिव alcoholic KOH, K has an affinity towards halogen क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और X क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड OH has an affinity towards hydrogen. तो ये दोनों ले जाएंगे, तो KX एक चला गया प्लस H2O चला जाएगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, तो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म कर देंगे, डबल बॉन्ड, एंड इट फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, एल्कीन. CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो क्या फॉर्म हुआ, इथीन फॉर्म हुआ, है ना. मैं ऐसे एक और केस देता हूँ, इसको बोलते क्या है, देखो यहाँ पे सपोज मैंने ब्रोमीन लगाया, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऐसे ही है. तुम्हें पता है जहां पे फंक्शनल ग्रुप होता है उसको कौन सा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन. तो यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो दिस इज व्हाट, अल्फा पोजीशन ऑफ कार्बन. तो ऑब्वियसली अल्फा के साइड वाला कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा, उसके साइड वाला कार्बन को गामा. ऐसे ही चलता है डेल्टा तक, 4 कार्बन ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि 4 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट और नहीं दिखता है. ऑल ऑफ यू नो दिस, 3 बॉन्ड्स या तो 4 कार्बन, इंडक्टिव इफेक्ट इज एप्लीकेबल टिल देन. लास्ट ईयर जब पढ़ाया था 11th में इंडक्टिव इफेक्ट. तो दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा. तो व्हेनेवर आई एम एडिंग KOH, वापस यहाँ पे दे रहे हैं अल्कोहलिक. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, K will take what, Br, OH will take H and they will form a double bond. तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, KBr plus H2O plus CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही फॉर्म हुआ. बट इन सब में क्या हुआ, एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन टेक्स प्लेस. हैलोजन तो क्या फर्क नहीं पड़ता, बट हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हर टाइम फर्क पड़ता है, कहाँ का हाइड्रोजन गया. तो एलिमिनेशन ऑफ व्हाट टेक्स प्लेस, बीटा हाइड्रोजन. अल्फा हाइड्रोजन तो सुने ही थे पहले, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहता है तो क्या होता है, फेवर, मोर टेंडेंसी टुवर्ड शोइंग अ रिएक्शन, मोर स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है. तो एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड, therefore reaction, above reaction also called beta elimination reaction.
is also called बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. इसी रिएक्शन को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक है, अंडरस्टूड. अभी तक तो सब सिमेट्रिक था. एसिमेट्रिक कार्बन होने से क्या होगा, वो उसके लिए एक रूल समझना पड़ेगा, सेटजेफ या तो जेटसेफ रूल्स, वो बताऊंगा देन आई एक्सप्लेन दैट. ठीक. नेक्स्ट उसी में ही लिखो सेटजेफ रूल, SATYZEFF, SAYT सेटजेफ, SAYTZEFF सेटजेफ रूल, और जेटसेफ ZAITSEB सेटजेफ रूल और जेटसेफ ZAITSEB रूल. राइट. इसके अंदर इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, in case of alkyl halides having 2 beta hydrogen, in case of alkyl halides having 2 beta hydrogen atoms, comma, it is possible to form 2 different alkenes, it is possible to form 2 different alkenes by the removal of, it is possible to form 2 different alkenes by the removal of either of the beta hydrogen atoms, by the removal of either of the beta hydrogen atoms, full stop. In such cases the more substituted alkene being more stable, being more substable is the major product, उसके नेक्स्ट लाइन में राइट. इन केस ऑफ आइसोमर्स द ट्रांस alkene, in case of isomers, comma, the trans alkene being more stable, is formed as the major product, ठीक है. ठीक है. So now you have to understand what is Setjeff's rule. जैसे देखो अभी मैं ना ऐसे 4 कार्बन वाला ले लेता हूँ और यहाँ पे ब्रोमीन लगा, तो बाकी सब क्या होगा, हाइड्रोजन, लाइक दिस. सो CH2 जो इधर का है और इधर का CH3, उसके एडजेसेंट को मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ HH, और यहाँ पे भी HH. If I give here alcoholic KOH, है ना, तो क्या होगा, ऑल ऑफ यू नो K तो Br को ले लेगा, तो OH इसको भी ले सकता है या तो इसको भी ले सकता है, दोनों को ले सकता है. बट वी विल गो फॉर द मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन है, ये कार्बन में क्या है ना, दोनों तरफ कार्बन है, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूट. ये कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है. ये वाला कार्बन क्या है, खाली 1 डिग्री इधर से कनेक्टेड है. डिग्री कैसे पता चलता है, कार्बन को कितना कार्बन अटैच है, इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन अटैच है और इस कार्बन के साथ 2, तो 2 डिग्री. दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड. तो मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होंगे बट मेजर और माइनर होगा यहाँ पे. तो अगर ये दोनों से चला गया तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा, समझ गए. H फिर CH3, उसका तीनों हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा. या तो क्या फॉर्म हो सकता है, अगर इधर फॉर्म हो तो कॉर्नर वाले दोनों के बीच डबल बॉन्ड होगा, तो ये KBr और H2O निकल गया, तो बचा कितना, H2. यहाँ H सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, इसके दोनों हाइड्रोजन इंटैक्ट रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इट कैन फॉर्म इधर देयर और हियर. तो ये वाला का नाम क्या होगा, 1 2 3 4. तो ये क्या है, ब्यूट 2 ENE, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4. दिस इज व्हाट, ब्यूट 1 ENE. बट ये मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि समझ रहे हो मोर सब्स्टिट्यूटेड वाले से हटाए ना, तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट 81%, एंड दिस इज व्हाट, माइनर प्रोडक्ट 19%. ये फॉर्मेशन होगा, मेजर प्रोडक्ट ये ज्यादा फॉर्मेशन होगा. और अगर स्ट्रक्चर बनाए भी तो ये देखो थोड़ा कैसा दिख रहा है, ट्रांस टाइप दिख रहा है. इसका अगर आइसोमेरिक फॉर्म भी आएगा ना, ट्रांस जैसा हो सकता है ना ये.
तो ट्रांस वाला इज मोर फेवरेबल, दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट। अगर आइसोमर के फॉर्म में दिया होता ट्रांस इज मोर फेवरेबल देन सिस, ऐसे। सॉरी, लाइक दिस, ये सिस है, ये माइनर होगा, है ना, ये ट्रांस है, तो ये क्या होगा, मेजर। क्लियर और एनी डाउट? पक्का? तो सेटजेट में क्या करना है, द मोर सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन से एलिमिनेशन कराना है, बिकॉज दैट इज मोर स्टेबल। क्लियर? और जो मेन चीज मैंने बताना भूल गया, अगर एक्वस होता तो क्या हो जाता वो बता देते हैं। अगर ऐसा ही है, सी सी यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस तरह का है, तुम लोग का एक्वस KOH डाल देगा तो क्या होगा, एक्वस KOH में क्या होता है ना, सब्स्टिट्यूशन होता है, समझ गए? ब्रोमीन को हटाएगा, ब्रोमीन को K ले जाएगा तो OH को वहां छोड़ के जाएगा, तो इन दिस केस व्हाट टेक्स प्लेस, सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, एक्वस वाले केस में, क्योंकि फेवरेबल है पोलर सब्स्टिट्यूट तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। HC एक्वस है तो C यहाँ पे Br की जगह कौन आ जाएगा, OH, वेरी गुड, और HH इधर, और फॉर्म क्या होगा, KBr, ब्रोमीन को K लेके चला जाएगा। इसमें मैंने लिखना भूल गया बाकी दो प्रोडक्ट, KBr एंड H2 प्लस KBr प्लस H2 लिखना जरूर, एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, तीन, चार, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग यू गिव मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। There are two types of mechanism known as EN1, two types of mechanism known as EN, मतलब EV capital NV capital, EN1 और E1 and EN2 or E2 and EN2 or E2 are possible for dehydrohalogenation of alkyl halides, are possible for dehydrohalogenation of alkyl halides, for dehydrohalogenation of alkyl halides, full stop। तो सबसे पहले इसमें दो केस ए या तो बिट 1, EN1 और E1, EN1 और E1 ब्रैकेट में राइट, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, इसमें राइट, पहला पॉइंट राइट, दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म is generally followed by, this type of mechanism is generally followed by tertiary alkyl halides, is generally followed by tertiary alkyl halides. Second point, it is a two-step mechanism. Second point, it is a two-step mechanism, full stop, right? In the first step intermediate carbocation is formed, in the first step intermediate carbocation is formed, ब्रैकेट में स्लो लिख देना क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज ऑलवेज अ स्लो स्टेप, मैंने पहले ही बताया। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, स्लो स्टेप, फुल स्टॉप। इन द सेकेंड स्टेप द न्यूक्लियोफाइल abstracts a proton, in the second step the nucleophile abstracts a proton from the beta carbon, abstracts a proton from the beta carbon to form alkene, from the beta carbon to form alkene, ठीक है। Now I'll explain। तो मैंने क्या बोला, बीटा एलिमिनेशन, और सबसे पहले मैंने EN1 एक्सप्लेन करूंगा। EN1 ऊपर रहता है और इट इज आल्सो कॉल्ड एज E1 रिएक्शन, ठीक। तो इसमें कैसे होगा, हम लोग के पास क्या होता है, हम लोग KOH डाल रहे थे जैसे डालना चाहिए, ठीक है ना। अभी जो बता रहा हूँ बेसिक, अभी जो मैंने तुम्हें एलिमिनेशन सीखा है उसी को एक्सप्लेन करूँगा। और यू टेक समथिंग 3 डिग्री वाला ज़्यादा फेवर करता है इधर, तो आई एम टेकिंग 3 डिग्री,
CH3 भी है इधर, CH3 इधर भी है। मैं 3 डिग्री वाला ही केस लेता हूँ, यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली 3 डिग्री कार्बन या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, सबसे बेस्ट वही लिख देता हूँ। इट इज अ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ऐसा रहता है। प्रोडक्ट तुम सबको पता है, बट इसमें पहले स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 होने से पहले दिस इज व्हाट एक्चुअली अल्कोहलिक, तो ये तुरंत आयनाइज हो जाता है। तो KOH आयनाइजेस टू फॉर्म व्हाट K प्लस OH माइनस, ठीक है ना। स्टेप 1 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे CH3 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 Br। तो पहले क्या होता है, दिस स्टेप इज स्लो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ब्रोमीन इस बॉन्ड को लेके चला जाता है, तो व्हाट फॉर्म्स CH3 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 प्लस कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एंड ब्रोमीन गेट्स एलिमिनेटेड बिकॉज इट्स अ लिविंग ग्रुप, चला गया। स्टेप 2 में जो होता है, कार्बोकेटाइन है एंड ब्रोमीन जो फॉर्म हुआ है ये किसके पास चला जाएगा, इट विल गो टू K प्लस, ठीक, इसके ऊपर प्लस है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है। तो OH माइनस ने क्या करना है, अब इस कार्बन को तो हमें स्टेबलाइज करना है, कार्बोकेटाइन को, तो H3 है, तो 1H 2H 3H। तो इसको कैसे स्टेबलाइज करेंगे, OH माइनस बोलेगा मैं H को ले जाता हूँ, ये जो बॉन्ड है कि नहीं, देखो कार्बन क्या है, ये बॉन्ड को इधर ट्रांसफर कर देगा ताकि ये कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर दे। तो दिस बॉन्ड विल गेट ट्रांसफर, बॉन्ड ट्रांसफर होते ये प्लस किसके पास चला जाएगा H, तो H प्लस एंड OH माइनस विल कॉम्बाइन। जब ये इसके पास अप्रोच करेगा तो उसी टाइम पे H बोलेगा मुझे जाना है, तो कार्बन बोलेगा तो हमारा बॉन्ड हम ले जाते हैं। तो दिस इज अ फास्ट प्रोसेस, ये बहुत जल्दी हो जाता है। सो ये बॉन्ड जब इधर ट्रांसफर हुआ तो कार्बन के साथ क्या हो गया, डबल बॉन्ड C, और 2 हाइड्रोजन बचेगा तो क्या हो जाएगा CH2, ऊपर में था CH3, इधर CH3 एंड दिस विल फॉर्म व्हाट H2। दिस इज अ फास्ट प्रोसेस। तो इसीलिए हम लोग जब ऑर्डर लिखते हैं, या तो रेट लिखता हूं मैं, रेट ऑफ द रिएक्शन इज नथिंग बट K इनटू स्लो स्टेप में कौन है, खाली अल्काइल हैलाइड है ना, दिस इज अल्काइल हैलाइड। तो स्लो स्टेप में रिएक्टेंट कौन है, अल्काइल हैलाइड, तो K इनटू रिएक्टेंट लिखते हैं हम लोग। स्लो स्टेप को ही कंसीडर करते हैं एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो दिस वन इज व्हाट रेट डिटरमिनिंग स्टेप, याद रहेगा। तो ये कितना ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, ऑर्डर इज 1, दैट्स व्हाई यूनिमॉलिक्यूलर। और न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ही हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करा रहा है, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, समझ में, एलिमिनेशन भी किसका हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का ही हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल ही हाइड्रोजन को ले रहा है, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। क्लियर।